Assalamualaikum everyone and welcome to another video on ECG. I am Dr. Wajid Shabir. I have done residency in cardiology and currently working as registrar cardiologist. This is the ECG which we are going to discuss today. आज की ECG में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि बाज़ औक़ात ECG पर बहुत सटल चेंजेस होती हैं जिनको हम नॉर्मली मिस कर जाते हैं। इसलिए जब भी आप ECG पढ़ें तो कोशिश करें कि ECG को एक सिस्टमेटिक वे में और डिटेल से देखें। डिस्कशन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आई वुड लाइक यू टू पॉज योर वीडियो, अपने पास फाइंडिंग्स को नोट करें, डायग्नोसिस नोट करें और वीडियो के आखिर पर अपनी फाइंडिंग्स को और अपनी डायग्नोसिस को कंपेयर करें विद व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। एज यू नो, सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो रिदम है। रिदम के लिए हम लीड 2 या रिदम स्ट्रिप को देखेंगे। एज यू कैन सी इन लीड 2 दैट देयर इज अपराइट prominent P wave before QRS complex. So this is a sinus rhythm. रिदम के बाद ECG पर जो हम नेक्स्ट चीज देखते हैं वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट के लिए एज यू नो हम एक ऐसा QRS कम्प्लेक्स सेलेक्ट करेंगे विच लाइज ऑन ब्रॉड वर्टिकल लाइन। उस QRS कम्प्लेक्स और नेक्स्ट QRS कम्प्लेक्स के दरमियान हम लार्ज बॉक्सेस को काउंट करेंगे। फर्स्ट लार्ज बॉक्स को हम काउंट करेंगे एज 300, नेक्स्ट विल बी काउंटेड एज 150, उसके अगला जो QRS कम्प्लेक्स है दैट विल बी 100 एंड नेक्स्ट विल बी 75, 60, 50 and so on. So in this case second QRS complex lies between 100 and 75. So most probably the heart rate is around 80 per minute in this case. हार्ट रेट के बाद हम ECG में एक्सिस को देखते हैं। एक्सिस के लिए एज यू नो हम लीड 1 और AVF में QRS की डायरेक्शन को देखते हैं। The direction of QRS in lead 1 is upward. Similarly, the QRS in lead AVF is directed upwards in lead AVF. So the axis is normal in this case. एक्सिस के बाद एक नेक्स्ट चीज जो हम ECG पे देखेंगे इस केस में, अगर आप लीड V1 में देखें तो देर इज प्रोमिनेंट आर वेव इन लीड V1। नॉर्मली V1 में आर वेव इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। So there are multiple differential diagnoses of prominent R wave in lead V1. It can be a normal variant in even healthy individuals. इसके अलावा in case of right ventricular hypertrophy आपको lead V1 में prominent R wave मिलती है। Similarly, in case of posterior wall MI आपको prominent R wave मिलेगी in V1. In case of hypertrophic cardiomyopathy, also in Duchenne cardiomyopathy, plus in WPW syndrome, that is Wolff Parkinson White syndrome, उसमें भी आपको प्रोमिनेंट आर वेव मिलती है इन लीड V1। तो इस केस में हम देखते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोमिनेंट V1 इन लीड, प्रोमिनेंट आर वेव इन लीड V1। सो अगर आप लीड 3 में देखें तो देयर इज शॉर्ट PR इंटरवल। और there is upward slurring of initial portion of R wave. Similarly, there is upward slurring of initial portion of R wave in lead AVF and lead V4. This upward slurring of initial portion of R wave is called delta wave. So a short PR with upward slurring of initial portion of R wave indicates presence of an accessory pathway and it is called
WPWR Wolff Parkinson White pattern. Now there is a difference between WPW pattern and WPW syndrome. Whenever you find this type of pattern in a patient who does not have any symptom, तो उसको हम कहते हैं WPW pattern. लेकिन जब आपको इस तरह का पैटर्न मिले और पेशेंट को सिम्टम्स भी हों, दैट इज पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ palpitation associated with chest pain, sweating, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट हैज़ WPW syndrome. Although the exact location of accessory pathway can be found on EP study only, लेकिन surface ECG पे भी कुछ indicators होते हैं जिनके थ्रू हम the direction or the location of accessory pathway को find कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप इस केस में देखें तो V1 में prominent R wave है, which means that the direction of initial current is basically directed toward V1. Similarly, the R wave in lead AVL is negative. So इस मतलब ये हुआ कि the initial direction of the current is directed away from lead AVL and towards V1. So the most probable location of accessory pathway in this case is left lateral pathway. Although the changes in this case are very subtle, लेकिन इनको आप देर आर मल्टीपल मेथड्स जिनके ज़रिए आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं. इनमें एक इजी बेड साइड मेथड है जिसके ज़रिए आप इन डेल्टा वेव्स को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, आप इजी डायग्नोज कर सकते हैं. द मेथड इज़ वल्सल्वा मैकेनिज्म और कैरोटिड मसाज. जब आप कैरोटिड मसाज करते हैं या वल्सल्वा मनोवर करते हैं तो द conduction through AV node is decreased while the conduction through accessory pathway will be increased. तो इस तरह ये जो डेल्टा वेव हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती हैं. सिमिलरली आईवी एडिनोसिन के ज़रिए भी आपके एवी नोड से कंडक्शन स्लो हो जाएगी जबकि एसेसरी पाथवे से कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें भी आपकी डेल्टा वेव प्रोमिनेंट हो जाती है. तो इस तरह से आप इस तरह की सटल चेंजेस को वेरीफाई कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा. फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.